امریکی وزیر خارجہ کا ایران کے ساتھ آبنائے ہرمز کھولنے پر بات چیت میں پیش رفت کا دعویٰ۔ امید ہے کہ ہرمز کھولنے سے متعلق معاہدہ جلد ہو جائے گا، تاہم ابھی تک کچھ حتمی نہیں۔ مارکو روبیو کا بیان۔ امریکی صدر کل سے آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلنے کے لیے پر امید۔ ڈیل نہ ہوئی تو ایران کو تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ آبنائے ہرمز امریکہ کی شرائط پر دوبارہ نہیں کھلے گی۔ ہرمز میں کسی دوسرے راستے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے عسکری مشیر محسن رضائی کا دو ٹوک پیغام۔ خبردار کیا، ٹرمپ کی پالیسیاں دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف دھکیل سکتی ہیں۔ محسن رضائی کے مطابق سعودی عہدیدار نے بتایا، عراق پر حملوں میں سعودی عرب کا کوئی کردار نہیں تھا۔ ایرانی صدر کا دفاع پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان۔ جنگ جاری رکھنے یا اسے وسعت دینے کے خواہش مند نہیں، لیکن ملکی سرحدوں کا دفاع کیا جائے گا، مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا۔ پاکستان کی امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے ایک بار پھر ثالثی کی کوششیں۔ ایران کے چیف مذاکرات کار محمد باقر کالباف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی سولو فلائٹ۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا آزاد کشمیر میں اتحادی کی بجائے تنہا حکومت بنانے کا اعلان۔ آزاد کشمیر الیکشن کے اگلے مرحلے میں 10 میں سے 7 سیٹیں جیتنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ واضح کیا کہ بلاول بھٹو یہ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں شفاف انتخابات ہوئے۔ پیپلز پارٹی دوسرے مرحلے میں پروپیگنڈا کرتے ہوئے داخل ہوئی۔ تیسرے مرحلے کے بعد پی پی انتخابی نتائج تسلیم کر لے گی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ترقی پر آزاد کشمیر کے لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا۔ مظفر آباد میں ایل اے 27 میں مکمل اور ایل اے 28 کے 57 پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ۔ دن بھر گہما گہمی، گنتی کے بعد حتمی نتائج کا انتظار۔ پیپلز پارٹی کا ایل اے 28 کے 2 پولنگ اسٹیشنز پر جعلی ووٹنگ اور پولنگ میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام۔ دونوں پولنگ اسٹیشنز پر غیر قانونی طور پر بیلٹ پیپرز پر ٹھپے لگائے گئے۔ اہل ووٹرز کو حق رائے دہی استعمال کرنے سے روکا گیا۔ جیالے امیدوار بازل نقوی نے چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا انتشاری اور شرپسند ایجنڈا ایک بار پھر آشکار۔ نیلم میں پولنگ اسٹیشن پر کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کی جانب سے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا شرمناک واقعہ۔ پولنگ کے دوران صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے منصوبے کی مالی معاونت کی منظوری۔ منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت تعمیر کیا جائے گا۔ رواں مالی سال میں پی ٹی وی کے لیے بھی 13 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اسلام آباد میں ایمرجنسی اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی تیاریوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آفات سے نمٹنے کی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے این ڈی ایم اے کی کاوشوں کو سراہا۔ انسانی جانوں اور اہم بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کے لیے تیاری، مختلف اداروں کے درمیان مؤثر باہمی رابطے اور فوری ردعمل کی ضرورت پر زور۔ پاکستان کی مسلح افواج امداد، بچاؤ اور بحالی کے آپریشنز میں سول انتظامیہ اور این ڈی ایم اے کی معاونت کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، فیلڈ مارشل کی یقین دہانی۔ لاہور کے تھانہ غازی آباد میں ذہنی معذور بھکاری لڑکی سے اے ایس آئی کی مبینہ زیادتی۔ اے ایس آئی لڑکی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر تھانے لایا، گیٹ پر موجود سنتری کے پوچھنے پر بتایا تفتیش کرنی ہے۔ انویسٹیگیشن روم میں لے کر زیادتی کی اور پھر موٹر سائیکل پر ہی واپس چھوڑایا۔ اہل خانہ اغوا کا پرچہ درج کرانے تھانے آئے تو گھر والوں نے فون کر کے بتایا لڑکی واپس آ گئی ہے۔ ڈی آئی جی نے ایس ایچ او سمیت تھانے کا 78 اہلکاروں پر مشتمل پورا عملہ معطل کر دیا۔ ملزم اے ایس آئی گرفتار۔
हजरत इमाम हुसैन और रफ़क़ा समेत शहदाए करबला के चहलुम पर मुल्क भर में मातमी जुलूस। कराची में निश्तर पाक से बरामद जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारा दर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। लाहौर में हवेली अलिफ शाह से बरामद मरकजी जुलूस मुक़र्रर रास्तों पर रमा दवा। जुलूस रात गए अपनी मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। रावलपिंडी में इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद जुलूस मुक़र्रर रास्तों पर रमा दमा है। पेशावर और कोयटा के मरकजी जुलूस अपनी अपनी मनाजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गए। रास्ते भर अज़ादारों की मातमदारी और नोहा ख्वानी। बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों, कस्बों और देहात में भी चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मातमी जुलूस। सखर का जुलूस रात गए तक रिवायती रास्तों पर गामजन। हैदराबाद में कदमगाह मौला अली से बरामद जुलूस रात गए करबला दादन शाह इमाम बारगाह पहुंचकर खत्म होगा। मीरपुर खास, मुल्तान, फैसलाबाद और सियालकोट समेत दीगर शहरों के जुलूस अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच गए। शहदाए करबला के चहलों पर बरामद मातमी जुलूस के सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई। कराची में जुलूस के रास्तों में आने वाली गलियां और सड़कें सील्ड। लाहौर में जुलूस के रूट में आने वाली 324 गलियां खारदार तारों और कनातों से बंद। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात। हैदराबाद, मटियारी, दादू, सज्जावल, टंडू अलाहियार और ठट्टा में डबल सवारी पर पाबंदी आयद। कोयटा और फैसलाबाद समेत कई शहरों में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने इराक के शहर नजफ में इमाम अली अलैहिस्सलाम के मज़ार पर हाजिरी दी और इबादत की। वीडियो में देखा जा सकता है कि अब्बास अराक्ची सिक्योरिटी एहलकारों की सख्त निगरानी के दौरान इमाम अली अलैहिस्सलाम के मज़ार पहुंचे। हर जमहूरियत में जब ऐसा क्वेश्चन आता है, वज़ीर आज़म के लिए आईनी, कानूनी, जमहूरी और मॉरली एतबार से लाजिम होता है कि फिलफौर एतमाद का वोट असम्बली से, जिसको लेने से वज़ीर आज़म कासिर रहें। चेयरमैन पीटीआई का वजीर आजम से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। मौजूदा हुकूमती निज़ाम मुकम्मल तौर पर अवाम का एतमाद खो चुका है। अहम इत्तेहादी ने वजीर आजम को चोर रास्ते से इक़्तिदार पर काबिज करार दे दिया। वजीर दाखिला ने मौजूदा निज़ाम पर सवाल उठा दिया। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग पंजाब समेत पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर की मकबूल तरीन अवामी जमात है। तमाम सूबों से एक ही आवाज़ आती है कि पंजाब अमन व अमान समेत हर शोबे में सबसे बेहतर है। वज़ीर आला मरियम नवाज की खुशाब के अरकान असम्बली से गुफ्तगू। क्या 25 करोड़ अवाम के निज़ाम को चलाने के लिए 1500 अरकान असम्बली काफ़ी हैं? स्पीकर पंजाब असम्बली का सवाल। गवर्नेंस एक ऐसी चीज है जिस पर रोज बात होनी चाहिए। आइन में लिखा है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मुंतखब नुमाइंदगान के पास होगी। पहले ये तय करना होगा कि हमारा सियासी निज़ाम चलना कैसे है। जब मुंतखब सियासी नुमाइंदगान मजबूत होंगे तो गवर्नेंस का निज़ाम भी मजबूत होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का सेमिनार से खिताब। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का बिलावल भुट्टो को दिल बड़ा करने का मशवरा। कहा, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत पूंछ डिवीजन के इजलास में नामजद लीगी उम्मीदवारों और ओहदेदारों की शिरकत। इलेक्शन मुहिम और पोलिंग से मुतालिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत कार्रवाइयाँ जारी। लकी मरबत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के मुताद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए। कई दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। यौम शहदाए पुलिस पर वतन पर जाने निसार करने वाले बहादुर एहलकारों को खराज अकीदत। पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने शहदा की कब्रों और यादगारों पर सलामी पेश की। फूल चढ़ाए गए और फातिहा ख्वानी की गई। पुलिस के आला अफसरान ने शहदा के अहले खाना से मुलाकात की और तहाइफ भी तकसीम किए। मुख्तलिफ शहरों में शमें रोशन की गईं। क़याम अमन और जराइम के खात्मे के लिए जानों के नजराने पेश करने वाले पुलिस के शहदा कौम के हकीकी हीरो हैं। शहदा पुलिस की कुर्बानियाँ कौमी तारीख का रोशन बाब हैं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। कौम अपने उन गयूर बेटों और बेटियों को सलाम पेश करती है जिनकी बेलौस खिदमात ने आने वाली नस्लों के लिए महफूज और रोशन मुस्तकबिल की राह को हमवार किया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब का यौम शहदाए पुलिस पर पैगाम।
पाकिस्तान और ईरान का दोतरफा तिजारत 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का आज़म। सरमायाकारी, राबताकारी और निजी शोबे के ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की ज़ेर सदारत पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में 10वां ज्वाइंट ट्रेड कमेटी के इजलास का इनेकाद। ईरानी वज़ीर तिजारत ने पाकिस्तान को तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक तिजारती शराकतदार करार दे दिया। IMF से मखसूस औकात में सस्ती बिजली फराहमी की सहूलत पर मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन इजाज़त नहीं दी जा रही। IMF को कायल करने की कोशिश की जा रही है। वफाकी वजीर बिजली के माहिरीन के सवालात के जवाब में इंकशाफात। कहा सहूलत से मुल्क में बिजली का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने रवा साल की दूसरी तिमाही में 2452 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी कर ली। नैब ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। 6 माह में 5 अरब 414 करोड़ की रिकॉर्ड रिकवरी की गई। वफाकी हुकूमत ने गंदम की दरामद पर आए तमाम टैक्सेस और ड्यूटी से इस्तिस्ना देने की तैयारी शुरू कर दी। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने गंदम की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटी से छूट मांगी है। हुकूमत ने 10 लाख मैट्रिक टन तक गंदम दरामद करने का फैसला कर लिया। सिंध हुकूमत के ट्रांसपोर्ट शोबे में अहम फैसले। आइंदा माह EV टैक्सी सर्विस शुरू और अक्टूबर में मजीद 50 डबल डेकर बसें लाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की यूनिवर्सिटी रोड पर मिक्स्ड ट्रैफिक लाइन का एक हिस्सा आइंदा माह खोलने की हिदायत। रेड लाइन BRT मंसूबे के डिपोज मुकर्ररा टाइम लाइन के मुताबिक मुकम्मल करने पर जोर। 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुल्क भर में तकरीबात इनेकाद किया जाएगा। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कश्मीर के मसले के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल जरूरी करार दे दिया। कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल मामूल बन चुका है। मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इस्लामाबाद में कल वॉक का इनेकाद किया जाएगा। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी होगी। अमीर मकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, GB, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब का अलर्ट जारी। पेशावर, मर्दान, डेरा इस्माइल खान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आइंदा 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में रात के वक्त बूंदाबांदी का इम्कान। लाहौर में हजरत दातागंज बश के उसकी तकरीबात का आखिरी दिन है। मुल्क भर से अकीदतमंदों की मज़ार पर हाजिरी। ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी इंतजाम और दूध की सबीलें भी लगाई गई हैं। साबिक अफगान फौजी कमांडर और अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट के सरबराह जनरल समी सादात ने कंधार से तालिबान रजीम के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया। साबिक कमांडर जनरल समी सादात ने अफगान तालिबान रजीम के रवैये से परेशान अफगान अवाम को जल्द आज़ादी की उम्मीद दिला दी। सहाफ़ी अब्दुल्ला जान साबिर का कहना है तालिबान रजीम के मजालिम और ख़वातीन पर पाबंदियों से अफगान अवाम तालिबान रजीम से बदज़न हो गए। अफगान तालिबान अवाम की खिदमत के बजाय अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ हैं। दहशत गर्दों की सरपरस्ती और मुतनाज़िर पॉलिसियों के बाइस अफगान तालिबान से पड़ोसी ममालिक की नाराज़गी बढ़ रही है। मुख्तलिफ मज़ाहमती ग्रुपों का मुमकिन इत्तेहाद तालिबान रजीम के लिए बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप को नया धचका। 25 डेमोक्रेट रियासतों ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 60 तिजारती शराकतदारों पर आए टैरिफ इंतजामिया के अख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरे टेस्ट का तीसरा रोज। पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 332 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरी, बाबर आजम 89 रन बनाकर रन आउट हो गए। वेस्ट इंडीज ने पहली इनिंग्स में 344 रन स्कोर किए थे। माइकल स्मिथ पाकिस्तान मेंस टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माइकल स्मिथ की तकर्रुरी की तस्दीक कर दी। माइकल स्मिथ रेड बॉल और वाइट बॉल टीम्स के साथ काम करेंगे। 46 साल माइकल स्मिथ को 2 साल के लिए बैटिंग कोच मुकर्रर किया गया। माइकल स्मिथ लेवल 4 कोचिंग क्वालिफिकेशन रखते हैं। माइकल स्मिथ इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे।
اور چین میں باربیکیو ریسٹورانٹ کا مالک امریکہ کے ارب پتی شخصیت ایلان مسک سے مشابہت کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا.